دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہ۔ علماء کرام کی تقریریں تیری ان نعت و حرکتوں منقبت سے حمد تجھے جان نیو جائیں پولی گے، بیٹ سننے کے لیے تیری ان سبسکرائب حرکتوں کریں سے آپ کا تجھے اپنا جان چینل جائیں دل گے، کے شیر رضا نیٹ پر۔ پیجامہ تیرا دیکھ کر پہچان جائیں گے، محشر کے روز دیکھنا، محشر کے روز دیکھنا، اے نزدیوں تم ہم کو جنت میں لے کے احمد مختار جائیں گے۔ سامعین اکرام، لیجیے ایک اور نئی عبارت دیوبندیوں کی غلیظ عبارت ایک اور سماعت کریں۔ ملفوظات حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی جو کہ کتاب کے مصنف ہیں، ان کی ایک عبارت جس پہ یہ مولانا غالب دیوبندی مالدہ ہے کہ مالدہ کا جو رہنے والا ہے، اس کی اس پر جو بحث ہوئی ہے، بحث و مباحثہ ہوا ہے، وہ سماعت کریں آپ۔ غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے، یہ دیکھیے آپ، سنیے گا یہ کتنے موضوع پر پلٹا ہے، کبھی مصنف پر کہ کبھی کہاں، لیکن میرا بات کرنے کا جو میرا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ سنے، جو حضرات کلپ سنے وہ مقصد کو سمجھ سکے کم سے کم۔ مقصد یہ ہے میرا کہ دیکھیے، میرا مقصد یہ ہے کہ ان کی کتاب میں یہ گندی عبارت ہے کہ نہیں کہ ماں سے بدکاری کرنا جائز ہے۔ یہ ہم سنیوں کا الزام نہیں ہے، یہ جب آپ کلپ سنیں گے یہ تو مولانا غالب دیوبندی نے اس بات کو مانا بھی ہے کہ ہاں ہمیں فخر ہے اس کتاب پر، ہمیں فخر ہے اس عبارت پر۔ تو مزید اب اس کے آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ دیوبندیوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ماں کو بھی نہیں چھوڑا۔ ایک کم علم رکھنے والا کسان ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی جانتا ہے کہ پاگل ہی کیوں نہ ہو، لیکن ماں سے زنا کرنا اگر کوئی کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، جائز نہیں کہہ سکتا ہے کوئی بھی شخص۔ لیکن دیکھیے دیوبندی کو مولوی نے کہا تو کہا، دیکھیے انہوں نے اقرار بھی کیا کہ ہاں ہماری کتاب میں عبارت ہے، ہمیں فخر ہے اس عبارت پر۔ اور دیکھیے یہ ادھر ادھر بھاگا ہے، مصنف پر بھاگا، ادھر بھاگا ادھر بھاگا۔ یہ ہم چاہتے تو ہم اس موضوع پر بھی بات کر سکتے تھے، لیکن میرا اصل مقصد یہ تھا کہ مدعے پر بات ہے۔ مدعا یہی ہے کہ اس کتاب مدعا آپ یہ ہے سنیں گے کہ یہ عبارت ہے کہ نہیں۔ تو آپ سنیے گا سامعین اکرام، سنیں اور دیکھیں کہ دیوبندیوں کی کتنی گندی گندی عبارتیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ مشن جو ہم نے پکڑا ہے انشاءاللہ یہ چالو رہے گا، ایک کے بعد دیگر ان کی گندی عبارتوں کا خلاصہ ہوتا رہے گا، اور انشاءاللہ یہ معنی اقرار بھی کریں گے، انکار نہیں کر سکتے، جیسا کہ ہر بار کی طرح اس عبارت کو بھی مانا ہے، جیسے کہ پچھلی عبارت کو دیوبندی نے مانا تھا کہ میری عبارت ہے ہاں نانی کا پخانہ والی عبارت، ویسے اس عبارت کو بھی اس نے مانا ہے کہ ہاں یہ میری کتاب میں ہے۔ مزید دیوبندی ہوں کہ سنی، میں دونوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ دیکھیں کہ حشمتی بول رہا ہے کہ کون بول رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے مولوی نے اس بات کو مانا ہے کہ نہیں کہ ماں سے جنا جائز ہے۔ بس مزید دیوبندی ہو کہ کوئی بھی ہو، جو شخص یہ کہہ سکتا ہے ماں سے جنا جائز ہے، تو اب آپ سمجھ جائیے، خود فیصلہ کر دیجیے۔ اے میرا بھولا سنی، اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ چراغ جلا کے رکھ دیے ہیں میں نے راہوں میں، چراغ جلا کے رکھ دیے ہیں میں نے راہوں میں، اب کوئی راہ بھٹکے تو یہ اس کی اپنی قسمت ہے۔ ہلو جی کون؟ ارے غالب صاحب، جی عظیم الشان رضا حشمتی بات کر رہا ہوں، سردار خان کا حشمتیہ۔ کون فرما رہا ہے؟ عظیم الشان رضا بات کر رہا ہوں۔ عظیم الشان رضا کہاں سے؟ ڈسٹرکٹ لکھیم پور کھیری یو پی سے۔ کہاں سے؟ ڈسٹرکٹ لکھیم پور کھیری یو پی سے۔ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں بہار ضلع کٹیہار سے، بنگال کے بارڈر سے۔ یا مالدہ سے؟ جی مالدہ۔ اچھا اچھا،
बहरहाल आप इतनी जल्दी भूल गए, आपको ध्यान नहीं भी थोड़े दिन पहले हमारी और आपकी गुफ्तगू हो चुकी है। नहीं नहीं, वो तो हाँ बात सही है आपकी, मगर आप जैसे एक तो नहीं ना, आप इतने हजारों हैं, रोज किस किस से बात होती है, नाम सुनता हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ कि भाई किस किस का नाम याद रखूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बात नहीं है। ये ऐसा है, आप एक किताब है मलफूज़ात हकीमुल उम्मत, जी, ये अशरफ अली थानवी साहब की लिखी हुई किताब है, और ये छपी हुई है मकतबे दानिश देवबंद। सफा नंबर 322 है, किस्त नंबर 3 है, जिल्द नंबर 20 की 3 है, ठीक है। अब पहली बात तो ये है, लिखा हुआ है कि एक शख्स अपनी माँ से बदकारी किया करता था। किसी ने कहा मैं ये खबीस, ये क्या हरकत है? तो वो कहता है कि जब मैं पूरा ही उसके अंदर था, तो अगर मेरा एक जुज़ अंदर चला गया तो क्या हरज है? तो थानवी साहब जवाब देते हैं कि ये हुक्म भी अकलियात में से हो सकता है। माअज़ल्लाह, क्या माँ से बदकारी करना किसी तरीके से भी जायज है? माँ से बदकारी करना, माअज़ल्लाह, 7 बार माअज़ल्लाह, करोड़ों बार माअज़ल्लाह, जो थानवी साहब कह रहे हैं कि ये हुक्म भी अकलियात में से हो सकता है, तो क्या माँ से बदकारी करना कुरान और हदीस से कहीं से है? कुरान हदीस से जी नहीं है। माअज़ल्लाह, इसकी अकल जो अगर पागल है तो अपनी माँ से जिना कर सकता है कि नहीं? ऐसा एक मिनट, नहीं है ना? अच्छा तो अभी आने को एक मिनट रुक जा। मैं ये कह रहा हूँ हजरत आपसे, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही, बोलिए। हाँ, अव्वल तो ये है कि मलफूज़ात हकीमुल उम्मत आपने कहा कि ये मौलाना अशरफ अली थानवी की लिखी हुई है, हालांकि ये उनकी लिखी मुसन्निफ का नाम हकीमुल उम्मत ही इसमें लिखा, मुसन्निफ का नाम अशरफ अली थानवी लिखा हुआ है। मेरे भाई मुसन्निफ का नाम तो जरूर है, मगर मलफूज़ात हैं वो, मकतूबात नहीं है, मलफूज़ात हैं वो। मलफूज़ात है तो ये जो है मुसन्निफ अशरफ अली थानवी साहब है, और ये छपी हुई भी देवबंद से है, सफा नंबर 322। तो ये कह दीजिए, आप ये कह दीजिए कि ये इबारत जो इसकी किताब में भी है, ये खबीस इबारत है, इसका जवाब देने वाला जो इसको जायज कह रहा है वो भी खबीस है, आप ये कह दीजिए। सुनिए, जो बात शरीयत के खिलाफ होगी हम यकीनन ऐसा ही कहेंगे, आपको बतलाने की जरूरत नहीं है, हमें अच्छी तरह मालूम है कि शरीयत किस चीज का नाम है। मैंने आपसे ये कहा, आपकी इस गलती पर मैंने तंबीह की कि हजरत आपने जो ये कहा कि मलफूज़ात हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी की लिखी हुई किताब है, तो मैंने कहा नाम मौलाना अशरफ अली थानवी से लिखा हुआ है। अरे मेरे भाई, नाम पर तो मैं आपको कलाम ही नहीं कर रहा हूँ कि आपने नाम गलत लिया। मैं कहा कि आपने जो मुसन्निफ का नाम अशरफ अली थानवी साहब है, और मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, जो बंद से छपी हुई है ये। आप उसका आप इधर उधर बहुत घुमाते हैं। सफा नंबर 322 है इसका, किस्त नंबर 3, जिल्द नंबर भी 3 है। अरे भाई, कह रहे हैं कि एक माअज़ल्लाह, किसी ने कहा अरे खबीस क्या हरकत है, तो वो कहता है कि जब मैं पूरा ही उसके अंदर था, तो अगर मेरा एक जुज़ उसके अंदर चला गया तो क्या हरकत है माअज़ल्लाह। तो इसमें लिखा हुआ है कि थानवी साहब कहते हैं ये हुक्म भी अकलियात में से हो सकता है माअज़ल्लाह। तो क्या माँ से बदकारी करना किसी भी तरीके से जायज है? किसी भी तरीके से जायज है क्या माअज़ल्लाह? अरे मेरे भाई, आपको इतना टाइम लेने की जरूरत नहीं है, आपका सवाल भी मैं समझ गया, तो मैं आप शुरू से मैं आपके इश्काल को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पर आप सिर्फ यही गलती नहीं कर रहे हैं, शुरू में भी गलती कर रहे हैं, आपको अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा है, वही एहसास दिला रहा हूँ आपको। आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि मलफूज़ात किसी की लिखी हुई नहीं, मुसन्निफ की लिखी हुई नहीं होती है, दूसरे की जमा करदा अल्फाज होते हैं जो मुसन्निफ के मुंह से आप ये कह दीजिए ये इबारत जो लिखी हुई है, जब आप जिसने भी जवाब दिया है, ये इबारत भी खबीस है और इसका जवाब देने वाला भी खबीस है, ये कह दीजिए आप। देखिए, अगर आपको मालूमात अगर जवाब लेना है तो फिर आपको जवाब लेने वाले की तरफ सुनना पड़ेगा, और अगर आप चाहेंगे कि आप मुझसे करके झगड़ा करना चाहिए, आप इधर उधर घुमा रहे हैं कि ये मलफूज़ात है, ये फलाना है, इधर ना करिए, आप सीधे कह दीजिए कि ये हमारी किताब ही नहीं है, ऐसे कह दीजिए सीधे। ऐसा कहूँगा, ये इमाम अहले सुन्नत की किताब है और है, इसमें फख्र है हमें, उसमें नहीं। मैंने आपकी गलती तुम्हारी है तो इबारत किसी गाँव वाले की है, इबारत गांव वाली की हो ना हो, मुसन्निफ की लिखी हुई नहीं है। आपको लिखा हुआ है, किसकी लिखी हुई वो थोड़ी, मुसन्निफ का नाम अशरफ अली थानवी लिखा हुआ सही है कि गलत लिखा हुआ है? अरे मेरे भाई, मलफूज जो होता है, मलफूजात, आपको मालूम है कि मलफूजात आला हज़रत किसकी लिखी हुई है?
अरे भाई हमें वो सब मैं बहस नहीं, जब वो सब आपकी बात मैं मानता हूँ। आपको यही नहीं मालूम है तो आप क्या जवाब देंगे? इबारत की बात कर रहा हूँ मैं, ये इबारत जो है ये खबीस इबारत है। जवाब देने वाला की खबीस है, पागल है जो ऐसा जवाब देता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मलफूजात आला हजरत किसकी लिखी हुई, उस पर मुसन्निफ का नाम मैं क्या कह रहा हूँ, आप देखिए सवाल पर सवाल करते हैं, यही देखिए फिर मौलाना वालिद साहब आप कहेंगे कि आपको मौका नहीं दिया जाता है। नहीं हमको मौका, हम कहते हैं आप ये कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि ये लिखी हुई थानवी साहब की नहीं है। मैंने आपकी बात को तस्लीम किया, ठीक है, मैंने आपकी बात को तस्लीम किया। अब आप ये कह दीजिए ये इबारत जो है ये इबारत खबीस इबारत है, और ये किसके जो जिन्होंने जवाब दिया वो भी खबीस है, कह दीजिए आप ये इबारत हमारी नहीं है, ऐसे कह दीजिए। तो मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई हजरत, आपको इसी का तो इकरार करना चाहिए ना खुले लफ्जों में कि हाँ मौलाना साहब मैंने ये गलत कह दिया कि ये मौलाना अशरफ अली थानवी की लिखी हुई है, ये मुझसे गलती हो गई। मुसन्निफ का नाम अशरफ अली थानवी है, तो मुसन्निफ का नाम होने के बावजूद भी वो देखिए मैं न मुसन्निफ पे बहस करना चाहता हूँ, न मलफूजात पे करना चाहता हूँ, न मकबूलात पे करना चाहता हूँ, मैं किसी पर बहस नहीं करना चाहता हूँ। मैं कहना आपसे ये सुनना चाहता हूँ ये इबारत सही है कि गलत, बस ये सुनना चाहता हूँ। मैं इस पर भी नहीं, ये दुनिया सुनना चाहती है आपसे ये इबारत सही है कि गलत, बस ये सुनना। दुनिया सुनना चाहती है और हम सुनाना भी चाहते हैं। हम वह हक वाजे करने के लिए ही बैठे हैं, और उलमाए अहले सुन्नत हक वाजे करने से कभी ना पीछे हटे हैं ना हटेंगे। उलमाए देवबंद कीजिए आप, उलमाए अहले सुन्नत मत जी, उलमाए अहले सुन्नत उलमाए देवबंद, ठीक है, उलमाए अहले सुन्नत तो हम हैं, और अलबत्ता हमें देवबंद होने पर भी सब हजार बार फख्र है, और उलमाए अहले सुन्नत तो खैर हमारी जो घुट्टी में पिला हुआ है वो तो खैर है ही। आपकी घुट्टी, मैं क्या कहना हूँ, ये आप क्या आप अगर पागल होंगे अगर तो क्या अपनी माँ से जिना कर लेंगे आप? क्या हो जाएगा? कह रहा हूँ कि आपको इसी तरह शुरू में तो नहीं मारी गई है, अगर आप पागल हो जाएं 2 घड़ी के लिए तो क्या अपनी माँ पे भी चढ़ बैठेंगे? माज़अल्लाह सत्वार माज़अल्लाह। मेरे भाई सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, ये उनकी लिखी हुई किताब नहीं है हजरत, आप इसका तो इकरार करें। आपने कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ, आपकी किताब है नहीं है तो आप उससे रुजू कर लेना अपने भाई। ये किताब आपकी है कि नहीं है? किताब मेरी है तो इसका मतलब नहीं कि उसका लिखने वाला अशरफ अली थानवी। आपने कहा कि उसके लिखने वाला अशरफ अली थानवी है, तो अशरफ अली थानवी। हाँ, तो आप मुसन्निफ का नाम तो अशरफ अली थानवी है, लेकिन ये उनकी लिखी हुई किताब नहीं है। यही तो मैं तंबीह कर रहा हूँ हजरत, ये किताब ये आज हमारी। मैं क्या उतनी देर से कह रहा हूँ कि मैं आपकी हर बात को तस्लीम कर रहा हूँ, यहीं पर मैं फोन करके नहीं बात रहा हूँ, आपकी हर बात तस्लीम कर, लेकिन मुझे जवाब ये चाहिए, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है ये इबारत आपकी है कि नहीं। तो मेरे भाई अगर आप अपनी गलती को पहले ही तस्लीम कर लेते तो इतनी बहस नहीं कर रहा हूँ। आप ये बताइए ये इबारत आपकी है कि नहीं? अरे मेरे भाई मैं तो उसी का जवाब देने जा रहा हूँ। तो दिया है ना कि ये हुकुम अकलियात में से हो सकता है कि ये जवाब किसी बाहर वाले ने तो नहीं दिया, न बरेलवी उलमा ने दिया है ये जवाब। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ मेरे दोस्त कि अगर आप अपनी गलती को पहले ही तस्लीम कर लेते तो इतना ना वक्त जाए। मैंने शुरू में आपसे बिल्कुल शुरू में कह दिया है कि ना मैं मलफूजात पे बहस करना चाहता हूँ, और मैंने शुरू में आपसे ये कहा था कि मैं आपकी हर बात तस्लीम करता हूँ। छोड़िए, मैं कहता हूँ ये इबारत आपकी है कि नहीं, मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ आपको। मेरा और आपका ये ऑडियो नेट पे आएगा मेरे भाई, तो आपको सच बोलना बिल्कुल आएगा। एक आ भी चुका है, आपको ध्यान नहीं है, सुनिए, एक आ चुका है आपका, जो आपने उस इबारत को माना था, ये मेरी किताब में है। बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि जब नेट पे आएगा तो लोगों को धोखा नहीं होगा। देखिए अगर मैं मुसन्निफ से बहस करूँ तो भी बात तब्दील हो जाएगी, मलफूजात पे बहस करूँ जब भी बात तब्दील हो जाएगी, मगर मैं जानता हूँ कि आपकी औकात नहीं बात करने की, इसलिए मैं उधर जाने नहीं देना चाहता आपको। मेरे भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह आपने जिस तरह जो मतलब कि हर आदर से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, दामन जो सुने तो सही, आप साहिल हैं, मैं मुझे नहीं है। मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश ये है कि जैसा बड़ा दिल करके आपने वो इबारत अपनी मानी थी, तो आप ये बताइए ये इबारत आपकी है कि नहीं? आप साहिल हैं, मैं मुजीब हूँ, तो आपको बर्दाश्त का मादा अपने अंदर रखना चाहिए। मैं आपसे हुक्म फतवा लगवाने नहीं आया, हुक्म मांगने नहीं आया हूँ, मैं आपकी वारगाह में नहीं आया हूँ। बिल्कुल, अगर बारगाह में नहीं आए तो मुझे आपसे बहस कर रहे हैं इस इबारत पर। क्या बात आप कर रहे हैं? आप एक बार बताइए, आप मुफ्ती है? सुनिए, नहीं हरगिज़ नहीं, ये किताब हमारी है, ये किताब सुनिए, ये किताब हमारी है, ये किताब हमारी है, ये किताब हमारी है। मुफ्ती है? अरे मेरे भाई मैंने इनकार कर दिया एक बार कि मैं मुफ्ती नहीं हूँ, और नहीं मुझे उससे फिर आपने कैसे कह दिया हम आपसे फिर क्या हुक्म लेने आएंगे?
एक दुनिया एक रास्ते पे चलते, जो रास्ते पे लोग चलते हैं उनसे हुक्म नहीं पता किया जाता मेरे है। भाई आप जवाब लेने के लिए फोन किए हैं ना, आपको जवाब चाहिए आप ना। इधर उधर घुमा रहे, जवाब दीजिए तो हम बोले ही ना। तो जब मेरा जवाब मुकम्मल हो जाए, जब मैं कहूं कि हाँ अब आपको बोलने की इजाजत है, मेरे जवाब से तशक्की हुई कि नहीं, तब आप उस पर इरादात पेश कर सकते हैं, मुझे कबूल होगा। बोलिए। मैंने आपसे कहा कि आपने 10 मिनट का वक्त जायज किया। जब हमारा ये ऑडियो नेट पर शाये होगा तो आपके अल्फाज को लोग सुनेंगे कि आपने ये कहा कि ये किताब मौलाना अशरफ अली थानवी की लिखी हुई है। हालांकि ये आपका सफेद झूठ है। मलफूजात की लिखी हुई नहीं होती है मुसन्निफ की, वो मलफूजात होती है। मीन आपका अब ये आपकी पहली गलती है जिस पर मैंने आपको तंबीह की, जिसका 10 मिनट बाद आपने तस्लीम किया। रही बात आपके सवाल की, आपके सवाल में उन्होंने ये कहा कि मौलाना अशरफ अली थानवी ये कहते हैं कि एक बंदा ये कहता है, यानी अकली घोड़ा दौड़ाता है, और आप मुझसे कह रहे हैं कि आप हमें शरीयत और कुरान हदीस से दिखाइए। मेरे भाई शरीयत यानी कुरान और हदीस से तो ये एकदम अम्र नाजायज और कतई है, कतई हराम है, सब जानते हैं। शरीयत की बात वहां तो हो ही नहीं रही है। हेलो, लेके एक नहीं रह गया हूँ लेके, अच्छा खैर मैं ला रहा हूँ 5 मिनट में। तो मौलाना साहब वहाँ पर शरीयत की बात लगा आपको, पहले तो बीच में सुनिए ये वहाँ पे नहीं, बात यहाँ पे चल रही है। एक शख्स अपनी माँ से बदकारी किया करता था, ये चल रही है बात। हाँ करता था, आप आप क्या कह रहे हैं? सुनिए मुझे मुख्तसर में जवाब देने दीजिए, फिर मैं अपनी बात करूँ। आपने क्या बोला अभी पीछे? क्या बोला आपने भी क्या बोला मैंने? अरे मेरे भाई बोला कि वहाँ पर पूछा जा रहा है, अकली घोड़ा दौड़ाया जा रहा है, ये बोला ना आपने? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मौलाना जिसकी बात कर रहे हैं, जिसकी बात वहाँ लिख रहे हैं कि एक बंदा जो कहता था या करता था, जो भी आप मान लें, जो भी इबारत में है, नहीं मान कैसे ले, तो लिखा हुआ वो बताएं आप। जो लिखा हुआ है आप वही मान लें, जो लिखा हुआ है कि बदकारी किया करता था। हाँ, तो अकली घोड़े के घोड़ा दौड़ा रहे हैं। अब आगे बोलिए। मैं कह रहा हूँ, अब आपकी इबारत मैंने सही करी, अब आगे बढ़िए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इबारत में जो है उसी को मदार बनाएं, हम उससे हटना भी नहीं चाह रहे, और अगर हट भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मदार ये है कि जो ऐसा करता था वो अकल के तकाजे के तहत करता था, ठीक है। और बहुत सारी चीज शरीयत तो हराम कहती है, जायज नहीं कहती, उसकी इजाजत नहीं देती है, मगर अकल उसकी इजाजत देती है। और उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, जब आप मसे करते हैं मुझे पर, आप ये इधर सुनिए, अगली घोड़े ना तो रही है। जवाब ये है कि मुझे असलियत में से हो सकता है। मैं आपको पहले जवाब मुकम्मल कर दूं, ये कहाँ से हो सकता है वो समझा दीजिए आप। हजरत पहले मैं आपको जवाब मुकम्मल कर दूं, फिर आप इश्काल पेश कर दें। मुकम्मल नहीं, आप डंडी मार रहे हैं। आप डंडी मार रहे हैं। नहीं, हरगिज मैं डंडी नहीं मार रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उसमें लिखा हुआ है, लिखते हैं वो कि एक शख्स अपनी माँ से बदकारी किया करता था। किसी ने कहा अरे ये खबीस, ये क्या हरकत है? तो वो कहता है कि जब मैं पूरा ही उसके अंदर था, तो अगर एक जुज़ अंदर उसके चला गया तो क्या हरज है? तो थानवी साहब बोले ये हुक्म भी अख्तियार में से हो सकता है। वो जवाब दे रहे हैं तो ठीक तो है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कौन सी कल से ये जवाब हो सकता है, किस तरीके से जायज है, आप ये बताइए। वहाँ तो लिख रहे हैं कि मतलब क्या मतलब दारुल क्या नाम जो उलमाए देवबंद है, क्या वो अपनी माँ को बख्शने के अंदाज में नहीं है कि पागल हो जाए तो माफी कर बैठो? मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मौलाना जो कह रहे हैं कि ये हुक्म भी अकलियात में से हो सकता है, लेकिन मुसलमान कैसे हो सकता है? कैसे क्या किसी भी तरीके से ये हुक्म माँ से बदकारी करने का सही हो जाए? किसी भी तरीके से जायज हो सकता है भैया। अरे भाई देखिए, अकलियात का मतलब समझ रहे हैं आप? अरे हम कह रहे कोई शख्स पागल हो गया, वो अगर कर रहा है कोई चीज, तो आपसे तो आगे एक बात बताइए। मौलाना जैसे गालिब साहब पागल हो गए। अब गालिब साहब पागल हो गए तो पता लगा पागलपन के चक्कर में अपनी माँ के साथ जिना कर रहे हैं। अजीम शाह ने मना किया भाई कि भाई ये क्या हरकत है? तो गालिब साहब कह रहे हैं कि जब मैं पूरा ही उसके अंदर था तो कोई फर्क नहीं था, अब मेरा थोड़ा सा हिस्सा चला गया तो क्या फर्क है? तो आप क्या अजीम शाह ये जवाब देंगे? नहीं, गालिब साहब वो जो है, गालिब साहब किसी भी तरीके से किसी तरीके से नहीं, वो सही कर रहे हैं क्या? किसी भी तरीके से सही हो सकता है वो? मैं आपसे ये कह रहा हूँ हजरत के गालिब की मिसाल गलत है। मिसाल के तौर पर ये समझिए, अब बुरा लगा ना आपको? मैं ये कह रहा हूँ कि मौलवी अहमद रजा नहीं है तो आपको बुरा लगना ही नहीं चाहिए। सुनिए
आपका बुरा लगना, आपको ये तारीफ करना ये बुरा लगना, भाई मैंने आपको इबारत सरासर गलती है, निहायत आप लोग गंदे गंदे लोग हैं। आप सुने तो सही, मैंने कब कहा कि मैंने आपकी बात का बुरा मान लिया? मैंने कब कहा? मिसाल गलत है, मिसाल गलत मानने का मैं ये मतलब नहीं है कि मैं बुरा मान रहा हूँ। मिसाल गलत है, उसको मैं कह रहा हूँ। देखिए इधर घुमा, मैं फिर कहता हूँ, सिर्फ सीधे सीधे ये बता दीजिए, जवाब दे रहे हैं। आप सुने तो सही, आप सुने तो सही, अलग बात है, आप सुने तो सही, आप सुने तो सही। मैं कहता हूँ, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, ये हुक्म अकलियात में से हो सकता है, वो कहाँ से ये हो सकता है, वो उसकी दलील दिखा दो एक। हाँ तो दलील ही तो दे रहा हूँ ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो मिसाल दी वो मिसाल गलत है, इसलिए कि मैं मिसाल के तौर पर आपको ये कहूँ कि मौलाना अहमद रजा खान साहब पागल हो गए। आपकी इबारत सही है, वो इबारत का मतलब समझाने के लिए सामने वाले कोई बोलना पड़ता है। आपको समझा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर अहमद रजा, देखिए मिसाल के तौर पर अहमद रजा साहब पागल हो गए, दिमाग खत्म हो गया, खब्तुल हवा। हमने तो नहीं बोला थानवी साहब पागल हो गए, हमने तो नहीं बोला थानवी साहब पागल हो गए। अरे भाई मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मैं ये आप जो किसी पागल को पेश कर रहे हैं, तो मैं नहीं, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आपने ये कहा? मैं कह रहा हूँ ना कि आप इसको कहते हैं, मैंने आपके किसी मौलवी को नहीं बोला अभी तक। अरे मेरे भाई मैं कह रहा हूँ, मगर मैं आपके मौलवी को बोल रहा हूँ ना, मैं आपके मौलवी को बोल रहा हूँ ना कि मिसाल के तौर पर मौलाना अहमद रजा खान साहब की अकल खत्म हो गई, तो आप उसको ना अकल के मैदान में उसको पेश किया जा सकता है ना शरीयत के। हेलो हेलो जी, हेलो फरमाइए। क्या हो गया आपको? भाई आपने फोन काटा तो आप बताएंगे कि आपको क्या हुआ? तो नहीं काटा, नेटवर्क की वजह से कट गया, कटने के बाद आपको लगाया, आपने 2 बार उठाया। भाई ना तो हमारा नेटवर्क कटा, आवाज नहीं आ रही थी, आपकी आवाज आ रही थी, इधर हमारी नहीं जा रही थी। हमारा ना तो नेटवर्क कटा है और न ही हमने काटा है, अलबत्ता आपका ये कहना है कि हमारा नेटवर्क कट गया। हाँ तो जाहिर सी हम ये नहीं कह रहे किधर से कटा, बहरहाल नेटवर्क प्रॉब्लम है, मौसम थोड़ा बारिश का हो रखा है, आंधी आई हुई है। वो तो हम खूब समझते हैं कि कैसे नेटवर्क बन ले, वो अलग बात है। जी जी, नहीं हम आपसे आपको ये बताइए, जो ये इबारत है, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ये इबारत आपकी है कि नहीं? ये इबारत इमाम अहले सुन्नत की है और हर्फ बहर्फ भी है, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने जो कहा ये मैं आपको कह रहा हूँ, आपको मैं कह रहा हूँ ये क्या करता है, तो वो कहता है जब मैं कह रहा हूँ, तो अगर एक जूझ उसके अंदर चला गया तो क्या हालत है? तो ये हुक्म भी अकलियात में से हो सकता है। आप ये कहते हैं इबारत हक है, अकलियात नहीं, अकलियात होता है, अकलियात नहीं हजरत, इबारत भी सही पढ़े। मुझे लगता है लिखा हुआ है कि ये उर्दू से अकलियात में से हो सकता है। अकलियात नहीं होता है हजरत, आपको कैसे मैं बताऊं? आप उर्दू 4 बार नहीं 5 बार कहलाओ, इधर उधर मत भागो, मुद्दे पे बात करो। ये इबारत आपकी है कि नहीं? हम जानते हैं, अकलियात मसले पर आपसे बहस कर सकते हैं, मगर हम बात में नहीं देंगे। होती है ना, बताइए ये मुद्दा ये है, ये इबारत, ये खबीस इबारत आपकी है कि नहीं? अरे मेरे भाई अकलियात होता ही नहीं है, आप गलत पढ़ रहे हैं ना। मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इबारत तो सही पढ़े। जवाब भी जो इन्होंने दिया है, तो ये ठीक है। इबारत तो सही पढ़े। नहीं, ये ठीक है। आप इबारत जब नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको तो मैं कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ कि रूए जमीन का कोई आलिम, सिर्फ बरेलवी नहीं, आप निहायत ही गिरे और जहन के लगते हैं मुझे समझने वाले, कि आप ऐसी बातों को तूल देते जहाँ पर मुद्दा नहीं, मुद्दा है इस मतलब इसका तो क्या है, उसका अंदाज क्या, उसका निचोड़ का, उस पर बात करिए। लेकिन आप जवाब देना नहीं चाहते, इधर उधर भाग रहे हैं। ये इबारत आपकी है कि नहीं? मेरे मोहतरम, इबारत आप गलत पढ़े फिर भी मेरी गलती, आप इबारत सही पढ़ते तो मुझे बात बढ़ाने की बात हुआ है कि एक शख्स अपनी माँ से बदकारी किया करता था, किसी ने कहा अरे खबीस ये क्या हरकत है, तो वो कहता है कि जब मैं पूरा ही उसके अंदर था, तो अगर मेरा एक जूज उसके अंदर चला गया तो क्या हरज है? ये आपकी नहीं है? आप आगे तो पढ़े। आगे पढ़ूंगा, ये इतनी आपकी इबारत है कि नहीं? अब आपको समझ में आ गया। मैं ये कह रहा हूँ, ये बात इतनी सी आपकी है कि नहीं? फिर हमारी है। मैं आपको सवाल करा कि नहीं किसी? मैं आपको कह रहा हूँ उतनी सी ही नहीं, पूरी इबारत और पूरी किताब हमारी है। पूरी पढ़ेंगे, ये आपकी है कि नहीं?
अरे पूरी किताब हमारी है, पूरी अरे इबारत ये हमारी है, हम तो आपकी गलती है की कि चोट में नहीं? अब थानवी साहब जवाब देते हैं कि ये हुक्म भी अकलियात में से हो सकता है। हाँ, तो आप अब आप अकलियात बोला बताइए करें, मुझको, अकलियात क्या नहीं होता है। किसी भी तरीके से सदबार मादल्ला किसी भी तरीके से क्या आप अपनी माँ के साथ जिना कर सकते हैं? किसी भी तरीके से कर सकते हैं? जिना मैं करेंगे कह आप? रहा हूँ, अब सुनिए, जवाब सुनिए। मैं कह रहा हूँ कि वो इबारत, पूरी किताब हमारी है, पूरी इबारत हमारी है, सियाक व सबाक भी हमारा है, और वो इबारत सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि दूसरी इबारत भी आपने कबूल की। ये खबीस इबारत आपकी है, लेकिन शुरू में जाओ तो आप ये कहते हैं ये खबीस मजमून पता नहीं कैसे, आपको तो पता ही नहीं, आप तो शुरू में इनकार कर गए। लेकिन कम से कम जब आपको पूरी तसल्ली है तो आपने माना। आपने ख्वाब में देखा होगा क्या? शायद मैंने इनकार किया, वरना मेरा ऑडियो मौजूद है, आप ऑडियो में हमें दिखा दें। शुरू में जब आप सुनेंगे ना, अरे शुरू में जब आपसे मैंने सवाल किया था तो शुरू में ही आपने की भाई कहने की जरूरत नहीं, आप भी जानते हैं गलत है कि नहीं, आपने ऐसा जवाब दिया है शुरू में। सुनिए, मैंने आपने जो उसका नतीजा निकाला, वो नतीजे की बात मैंने की है। इबारत हर्फ बाहर सही है, नतीजा तो वही निकल रहा है, तो वो तो आपकी समझ से निकल रहा है ना, हम तो नतीजा नहीं निकालते। आप सही नतीजा निकाल दीजिए इसी बात। हाँ, मैं पहले, अब सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि वो इबारत हर्फ बहर्फ सही है, और रूए जमीन का कोई आलिम किसी माने ऐसा नहीं जना कि वो उस इबारत को गलत साबित करे। देवबंद और आप लोगों को ही माँ से जिना करना मुबारक हो। आपके नजदीक जायज होगा किसी भी तरीके से? हमारे नजदीक तो जायज ही नहीं है। जायज क्या, हमारे नजदीक सोचना भी गलत है ऐसी इबारत को। ऐसी इबारत जहन के लोग लिख सकते हैं। किस खर दिमाग में ऐसी इबारत, ऐसी किताब, ऐसा मुसन्निफ, आपको ही मुबारक हो जनाब। बेशक हमें फख्र है, इमाम अहले सुन्नत पर हमें फख्र है। मलफूजात आपको फख्र है कि माँ से जिना करते हैं, आपको फख्र है कि आप पागल बन जाएंगे और माँ से जिना करेंगे, आपको फख्र है इस बात से। ये आपका काम है हजरत, ये आपका काम है, आपकी समझ, आपका दिमाग है। गंदी इबारत को आपने माना, कम से कम ये मुझे तो हैरत है कि इस बात की आपको थानवी साहब को तो पढ़े लिखे थे ना, जाहिल गवार तो थे नहीं, उनको जवाब देना चाहिए था। पागल खबीस इबारत, खबीस जवाब लेने था, खबीस ये काम करता, उनको तो चिल्लाना चाहिए था, तंबीह ही करना चाहिए था उनको, मगर वो कह रहे नहीं, ये भी अकलियात में से हो सकता है। बिल्कुल, हम भी कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इमाम अहले सुन्नत क्या करता है, ये पागल कहीं तो ऐसा कहना चाहिए। अल्लाह पाक ने इमाम अहले शख्स को जो माँ से जिना कर रहा हो। सुनो मेरे भाई, सुनो, मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने इमाम अहले, सुनने की क्या, अब इसमें एक और लिखा है कि एक से गू खाया करता था, मना करने पर वो कहा करता था कि जब मेरे पूरे ही अंदर था, तो अगर मेरे अंदर थोड़ा सा चला जाए तो क्या हर्ज है, बताइए। हाँ, तो वो मेरे ख्याल से अहमद रजा साहब के मुतालिक कह रहे होंगे वो। नहीं, उसमें आपका जवाब दिया अहमद रजा खा के आए, आला हज़रत का तो कोई यहाँ पे लेना देना ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं। लेना देना है ना, लेना देना है, वो लेना देना मैं बता रहा हूँ, मैं बात नहीं कर रहा। इबारत हो गई, ये किताब तस्कीर रसीद सफा नंबर 242 है। अरे मेरे भाई, अभी आप जानना चाहें, रंडिया मुरीद की बताओ, रंडियों को तुम नहीं छोड़ा, तुमने मुरीद करने में है। अभी आप जानना छुड़ाएं, अभी आपके पहले सवाल का ही जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। तुमने रंडी की मुरीद करने के लिए तुम्हें, अभी आपके पहले सवाल का ही जवाब नहीं हुआ है। मैं इस कह रहा हूँ कि आपने दे दिया, आपने कबूल कर लिया, वो खबीस इबारत आपकी है और आपको फक्र है इस बात पर। बिल्कुल, हमें वो इस इबारत पर फक्र है। जिना करे और आपके पास चला जाए तो आप उसको सही किसी न किसी सही ठहरा ही देंगे। आपको फक्र है, अहमद रजा का मानने वाला होता है, हमें अच्छी तरह मालूम है। करने का आपने नहीं छोड़ा। सुनिए, रंडियों को रंडिया जिनका मुंह, और इसमें लिखा हुआ है कि जो है एक बार ये सारण में किसी रंडी के मकान पर ठहरे हुए थे और हम आपसे कह रहे हैं पीर साहब आए हुए हैं। चलो भैया, अरे मेरे भाई, आपसे हम ये कह रहे हैं कि इमाम अहले सुन्नत को अल्लाह पाक ने इल्म अता किया है। कई जगह होता है कि अल्लाह पाक ने इमाम अहले सुन्नत को वो इल्म अता किया है कि अल्लाह पाक ने इमाम अहले सुन्नत, अल्लाह पाक ने इमाम अहले सुन्नत मौलाना अशरफ अली थानवी को वो इल्म अता किया है कि अगर उसके इल्म का अगर करोड़वां हिस्सा निकाला जाए तो एक एक हिस्से में हजारों फाजिल बरेलवी अहमद रजा निकल जाए। ये वही है कि ऐसे इल्म वाले आपको ही मुबारक हो जो माँ से जना को सही ठहराए, और गो खाने वाले को जो सही ठहरा वो ऐसे इल्म वाले आपको ही मुबारक हो। ऐसे इल्म वाले तो आप ही को मुबारक हो जो नबी के इल्म गायब को मादल्ला सुअर जानवर पागलों से तस्बीह दे। ऐसे इल्म वाले तो आपको ही मुबारक हो
जो मतलब मादल्ला खूब चाटने की बात कर दे मादल्ला, ऐसे इल्म वाले तो आपको ही मुबारक हो जो 3 साल की 4 साल चप्पलें चुराते हो, ऐसे इल्म वाले तो आपको मुबारक हो मादल्ला। जो खुद अपने हाथ ही उस्ताद हो उनको भी नमाज में धोखा दे दिया मादल्ला, ऐसे इल्म वाले आपको मुबारक हो कि उनके भाई ने उनको पेशाब करी तो वो अपने भाई के ऊपर खड़े होकर अपने भाई के ऊपर खड़े होकर पेशाब कर रहे थे, ऐसे इल्म वाले आपको मुबारक हो जो अपनी समझदार है, अल्हम्दुलिल्लाह आवाम समझदार है, वो समझ जाएगी कि आप मेरा जवाब है, जितनी आप मेरा जवाब हजम नहीं कर पा रहे हैं, आप मेरी बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आप मेरी बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपना जुबान जो है कुछ न कुछ चलाते रहेंगे। बिल्ली कमान हो रही है, यही है, यही बिल्ली कमान हो रही है, ये लगने वाली बात है। जो है रास नहीं आ रही कि कभी जो है मैं कभी कह रहा हूँ नानी के पोते नजर आते हैं आपको, मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ सामयिक ग्राम बहुत ठंडे दिमाग से सोचिए। मैं तो ये कह रहा हूँ हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना अशरफ अली थानवी ने इमाम अहले सुन्नत मौलाना अशरफ अली थानवी ने इस नंबर है 3 इमाम अहले सुन्नत मौलाना अशरफ अली थानवी ने जो ये लिखा है कि आपने खुद सुना, इन्होंने ये कहा कि ये इबारत हमारी है, हम ये कह रहे हैं फख्र है। खुद सोचे सामईन इकराम, क्या माँ से जिना को इबारत और उनके उलूम पर हमें फख्र है और फख्र रहेगा। हो सकता है हमें किसी मुशरिक से कोई वास्ता नहीं, कल भी मुशरिकों पर लानत भेजते थे और आज भी मुशरिकों पर लानत भेजते हैं। क्या है हमेशा मुशरिकों पर गुमराहों पर जो है लानत भेजते हैं और भेजते रहेंगे, समझे मेरे भाई। हम मुशरिकों से हमारा कोई वास्ता नहीं, जन्नत है हमें मुशरिकों से कोई वास्ता नहीं, बरेलवी मुशरिकों से हमें कोई वास्ता नहीं। हम कौन मुशरिक अहमद रजा मुशरिक आजम पर हम लानत भेजते हैं, हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं। सब मुशरिक है। अहमद रजा जो है गुलामों के गुलाम के लायक नहीं है, के लिए तैयार है, समझे। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपकी किताबों आला हजरत को मुसलमान साबित करेंगे आपकी किताबों। मैं आपसे कह रहा हूँ कि कि क्या थानवी साहब ने आला हजरत के बारे में जब उनका विशाल हुआ था आला हजरत का, तो थानवी साहब के जुमले क्या थे वो बता दो मैं। कि वो काफिर है। क्या कहा? काफिर है वो। क्या दलील है? कौन कहीं लिखा हुआ है? उन्होंने लिखा है? बिल्कुल लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। क्या लिखा वो बताइए जरा। अब सुने, मैं कह रहा हूँ। अरे क्या लिखा हुआ है बताइए तो सही। कहे लिखा है कि काफिर है वो। बड़े से बड़े देवबंदी का बयान भी है, इबारतें भी है, किताबें भी है। मैं आपसे कह रहा आप पढ़े कि वो पढ़े? मैं ये कह रहा हूँ कि इमाम अहले सुन्नत ही हमसे बड़े हैं और उन्होंने अहमद रजा जैसे मुशरिकों को। इमाम अहले सुन्नत नहीं उसको कहो, इमाम अहले सुन्नत ने कहो। इमाम अहले सुन्नत ने अहमद रजा करार दे, वो इमाम अहले सुन्नत कैसे हो सकता है? इमाम अहले सुन्नत ने अहमद रजा जैसे मुशरिकों को काफिर लिखा है। और कभी तुम कहते हो कि काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए, आज अपनी भी बात आई तो सब काफिर नजर आने लग गए। अरे सब कहा अहमद रजा काफिर है भाई, हमारे यहाँ के बरेली अवाम बेचारे काफिर थोड़े हैं। मैं कह रहा हूँ कि अहमद रजा का कुफ्र माज़अल्लाह साबित करने के लिए हुस्सामुल हरमैन शरीफ में आप पर फतवा लगा था। तो अब मैं उस पे जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि बात हो जाएगी। अगर आप चले भी जाएंगे, ये इबारत आपकी है, अगर चले भी जाएंगे, आप ही नहीं, आपकी पूरी ज़ुर्रियत भी अगर हुस्सामुल हरमैन की तरफ चले जाए तो अहले सुन्नत का एक बाल नहीं देखा होगा। अरे हम नहीं, हम चाहते हैं, हम सामईन इकराम का टाइम खराब नहीं करना चाहते। उस मौजूद का एक बाल देखा नहीं होगा, अहले सुन्नत का एक बाल देखा नहीं होगा। आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या आप भी अपनी बात सुन्नत का एक बाल बेका नहीं होगा अहमद रजा जैसे मुशरिकों से। थानवी साहब और आप लोग सारे लोग करते हैं कि सिर्फ एक वही करा करता था माँ के साथ बदकारी, या सारे लोग आप करते हैं? मौलाना अशरफ अली थानवी कह रहे हैं ना अहमद रजा के मुतालिक कि वो गू भी खाता था। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं किसी पर खलील अमेठी को नहीं बोला, इस्माइल देलवी को नहीं बोला, मैं सिर्फ अभी आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी इबारत की बात कर रहा हूँ। मगर आपको देखिए कि आप कहाँ नहीं घूमे, आप आला हजरत पे पहुंच गए, लेकिन हमने आपको किसी अभी तंबी नहीं करी, लेकिन आप कहाँ नाच रहे हैं। अरे मेरे भाई, मैं खुले मन से इस इबारत पे बात हम करते हुए कि आप कहाँ नाच रहे हैं। हम हर तरफ देख कर बात कर,
یہ بتا کہ ہم ہر کارواں طرف دیکھ کیوں کر لٹا؟ چلتے ہیں، مجھے رہ ہم ہر سے طرف غرض دیکھ کر نہیں، چلتے ہیں۔ تیری رہبری کا سوال ہے۔ آپ ہاں ہم جو ہے نا ہر طرف دیکھ مجھے کر اس چلتے ہیں، عبارت میں یہ ہے کہ یہ آپ نے مانا کہ آپ کی عبادت ہے، تو میں اور آپ کو فخر بھی کہتا ہوں ہے، کیا آپ اور اس ہمیں عبارت فخر پہ بھی ہے، عمل کرتے ہیں؟ اور ہمیں فخر بھی ہے اس عبارت پر، لیکن ہم ارے تمہاری آپ اس سمجھ پر عبارت پہ عمل کرتے ہیں؟ بے شک عبارت پر ہمیں فخر ہے اور عمل بھی آپ اس کرتے ہیں، عبارت لیکن پہ عمل تمہاری کرتے سمجھ ہیں؟ پر ہمیں آپ آپ کی اس سمجھ عبارت پہ پر ہم عمل کرتے لعنت ہیں؟ بھی بیچتے ہیں، آپ کی نہیں، سمجھ آپ پر اس ہم عبارت پہ لعنت بھی عمل کرتے بیچتے ہیں؟ ہیں، آپ کی اس عبارت سمجھ پہ پر عمل ہم کرتے لعنت بھی بیچتے ہیں، عبارت پر کیا؟ بالکل عمل کرتے ہیں، اب عبارت پر کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کی سمجھ پر ہم لعنت بھی بھیجتے ہیں۔ نہیں ہماری سمجھ پہ نہیں، اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ بالکل، حکم بھی آپ میں سے ہو سکتا ہے، تو ہم تو صاف انکار کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ آپ کو تو میں ببانگ دوہر ڈرتے کی زنا چوٹ میں کرنا کہہ رہا ہے ہوں، کام عام آدمی سے بھی پوچھ لیں گے تو وہ کہہ دے گا کسی بھی طریقے سے۔ پہلی بات تو وہ تھانوی کی طرح چلے گا نہیں، اس میں تو میں بحث ہی نہیں کر رہا، اس میں تو میں بحث ہی نہیں کر رہا، تمہاری پیچھے کی تو سالے ماں کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے وہ تو تمہاری بات پہ تو میں بحث ہی نہیں کر رہا ہوں، تمہاری بات پہ تو کسی بحث ہی دلیل نہیں کی کر رہا ضرورت ہوں، نہیں ہے، میں تو تمہاری بات سے میں تو اپنے دلیل امام کی اہل ضرورت سنت کی نہیں ہے، بات وہ کر رہا ہوں۔ سیدھے ڈنڈا لے کے آپ کو مارے گا، سمجھ رہے میرے ہیں؟ بھائی میں کیا کہہ رہا اسے ہوں، کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ سیدھے ڈنڈا لے کے بھاگے گا کہ ماں میں کو آپ بھی سے نہیں کہہ چھوڑا رہا تم نے۔ ہوں، میں ہلو؟ آپ سے کہہ رہا ہوں، ہلو؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں تو امام اہل سنت کی عبارت پر بحث کر رہا ہوں، اس پر فخر کر رہا ہوں، اس پر عمل امام کرتا ہوں، اہل صحیح سنت جن کو آپ کہتے ہیں تو ان کی صحیح۔ عبارت کا مطلب یہی ہے، انہوں نے صاحب کہا کہ یہ حکم اقلیات میں سے ہو سکتا ہے، تو آپ بھی آپ کی کریے، آپ بھی کرتے ہوں گے نا، اب کریے کیا آپ کرتے ہی ہوئیں گے۔ ارے میرے بھائی آپ سنیں تو صحیح، میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک اور عبارت لیجیے، ایک اور عبارت سنیے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کی جو عبارت ہے، آپ سنیں تو صحیح، ٹھیک ہے، مولانا اشرف علی تھانوی کی جو عبارت ہے، مولانا اشرف علی تھانوی کی جو عبارت ہے، اس پر ہم عمل بھی کرتے ہیں، اس پر فخر بھی کرتے ہیں، ناز بھی کرتے ہیں، اس پر ناز بھی کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، فخر بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کی سمجھ پر لعنت بھی بھیجتے ہیں، آپ کی بنا پر لعنت بھی بھیجتے ہیں، اپنے منہ کو آپ کے مطلب پر بند کر لیجیے، اذان ہو رہی ہے۔ آپ کے مطلب پر تھوکتے ہیں، آپ کے مطلب پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اس عبارت پر عمل اور فخر کرتے ہیں۔ ارے اذان ہو رہی، خبیث اذان ہو رہی۔